जो स्थिति है, दैट इज अबाउट द पेट्रोलिंग पॉइंट 14 एंड फिंगर 4 टू फिंगर 8। अब ये फिंगर 4 टू फिंगर 8 क्या है? इट इज ईस्टर्न लद्दाख पार्ट, दिस इज द गलवान वैली, and this Galwan Valley is basically about, you see, the Chinese has already constructed the road and all infrastructure till the finger 8. And finger 8 to finger 4, the China and India jointly patrolled. Never they stopped. Now India also wanted to construct the road. India also wanted to build up the road, build up the infrastructure. Here the China has a problem. China is telling you, no, you can't. You already constructed till finger 4. Now you could not construct till finger 4 because this is the joint area, this is the gray area. And you can't construct. India is telling, if you constructed till finger 8, that was also the gray area, then why I can't? यदि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं करूंगा? चाइना कहता है कि नहीं, देखो, this is the, I already in 1962 itself claimed that after winning the Aksai Chin, I withdraw myself till the line of actual control. And I also won the Arunachal Pradesh. But I withdraw myself to the line of actual control. And right now, I am claiming about the Tawang. And the Tawang, if I thought about it, then I would have captured it in 1962 itself. कहते कि देखो भारत, तुमको मैंने पहले भी 1962 में कहा था, ये जो फिंगर 14 से लेकर फिंगर 8 से लेकर और ईस्टर्न लद्दाख का जो कुछ पार्ट है अक्साई चीन के आगे, वो भी चीन का है। लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी बात को, एक अंतरराष्ट्रीय और चाइना एक पीसफुल राष्ट्र है, इसको हम ध्यान में रखते हुए हम वापस हो गए। हमने अक्साई चीन तक ही अपनी सीमा को रखा। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि ये चीजें हमारे एरिया का है और हमें तुम अपनी सहमति से दे दो। तुमने नहीं माना। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश को, जिसको तुम नेफा कहते थे, उसको भी हमने जीत लिया था और हम तेजपुर तक चले आए थे। लेकिन हमने यूनिलैटरल विड्रॉ कर लिया। हम क्यों विड्रॉ कर लिया? हम नहीं भी करते। जिस तरह से हम अक्साई चीन को कब्जा किए, उस तरह से हम कब्जा कर लिए होते। तुम आखिर हमसे क्यों लड़ना चाहते हो? व्हाट इज प्रॉब्लम यू हैव? भारत कहता है, you see, the way you are interpreting your cow, that is not the truth. If you see all the historical facts, even the Dogra kings and Jammu Kashmir state or the Punjab state, this Aksai Chin was the very much part of the India. And now you are claiming Arunachal Pradesh as the southern Tibet. You said कि if you accepted the North Tibet as the integral part of the China, जैसे कि आप कभी-कभी सुनते होंगे, बीजेपी और कांग्रेस से बड़ा तनातनी चलते रहता है और बीजेपी वाले कहते हैं कि राजीव गांधी थे, वो गए चीन की लिपापोती करने। ऐसा नहीं था। चीजें थी कि 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चीन गए और जब चीन गए तो उस समय वियतनाम पर अटैक कर दिया, वाजपेयी जी वापस आ गए। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश, जिस पर कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है वो, and it was claimed by the China that this is the part of the southern तिब्बत, और ये तिब्बत जो है ये चीन का भाग है और भारत इस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए। राजीव गांधी ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक राज्य घोषित कर दिया। There was a tension. China opposed. China sent its troops on the border. China said, no, you can't. But Rajiv Gandhi was determined. He said, no, the Arunachal Pradesh is very much part of the India and we have all right to declare it as another state of the India. Anyhow, the matter has been sorted out. The relation has been smoothly gone. उसके बाद 90s के बाद पूरे विश्व की स्थिति बदल गई। वाजपेयी जी द अनदर स्टेट्समैन ऑफ द इंडिया, दूसरा स्टेट्समैन चीन गया 2003 में, एंड फर्स्ट टाइम ही एक्सेप्टेड कि तिब्बत एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना।
वाजपेयी जी ने कहा कि तिब्बत जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना, लेकिन he has also done a deal. What the deal he had done? He said the Chinese accepted that the Sikkim is the de facto state of the India. Before that, 2003 से पहले, China always saw Sikkim as a independent kingdom. चाइना हमेशा सिक्किम को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक अलग राजतंत्र के रूप में अपने नक्शे में दिखाता था। वाजपेयी जी ने यदि ये एक्सेप्ट किया कि तिब्बत इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना, then he also compelled the Chinese to accept that Sikkim is the integral part of the India. Though Chinese didn't accept legally that de jure, what I have said it, the de jure and de facto. Chinese is still saying de factly, still Sikkim is the part of the China, but de jure I am not accepting that Sikkim is the integral part of the China. Now the question is, you see, we use the border problem so casually. You see, someone say that the border is 2100 miles, some say 2200 miles border problem, some say 4000 kilometers border problem, some say 3500 kilometers. Could you imagine, even we do not understand really where we have a problem. But generally we accept it from 3500 to 4000 kilometer border problem between the India and China. And the major problem in the western sector, that is Eastern Ladakh and the Aksai Chin. And another problem that is considered as a notional problem. Notional problem means we are claiming for the bargaining. Arunachal Pradesh, China is claiming for the bargaining. In 1985, the first time officially China claimed about the Tawang. And what is the history of the Tawang? ये तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का, उसका क्या इतिहास है? अब तवांग जो है 1951 तक तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता था। वहां पर ब्रिटिश ने कभी भी अपना एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भेजा। जब तिब्बत पर चाइना ने एनेक्सेशन कर लिया तो पंडित नेहरू ने स्विफ्टली तवांग पर अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिया और तब से तवांग जो है डायरेक्टली इंडिया के कंट्रोल में। नाउ चाइना ये क्लेम कर रहा है कि देखो भारत, आपको ये समझना पड़ेगा कि तवांग 1951 तक तिब्बत का भाग था। इवन आप जिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, जिसके डिमार्केशन की बात करते हो, उसने भी कभी अपना एडमिनिस्ट्रेटर तवांग में नहीं भेजा था। और आप जो है कह रहे हैं कि तवांग हमारा भाग है। दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर चाओ एन लाई जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि एक स्वैप डील करते, एक पैकेज डील करते, तुम अरुणाचल प्रदेश रख लो, हमें अक्साई चीन दे दो। भारत ने कहा नो, दैट इज नॉट possible and feasible because Aksai Chin is very strategically important. It's also for the India, also for the China. Because see, why it's important for the China? Because the Karakoram Highway and the GH219, it reduced almost 800, almost 1000 kilometers, or you can say 1000 to 12 kilometers distance between the Tibet and Xinjiang or Xinjiang. Then also it's opened the way for the China to access Indian Ocean, to access Central Asian region, to access Middle Eastern region, to access African region. So this is a very important strategically. So China doesn't want to leave the Aksai Chin. इसलिए चाइना जो है नहीं चाहता है, एंड भारत सोचता है कि इफ द गिलगिट बल्टिस्तान और अक्साई चीन यदि भारत के अंदर आ जाता है, इंडिया वुड हैव अ बेटर एक्सेसिबिलिटी टू द सेंट्रल एशियन रीजन, इंडिया वुड हैव बेटर एक्सेसिबिलिटी टू कनेक्ट विद द मिडिल ईस्ट, इंडिया वुड हैव बेटर एक्सेसिबिलिटी टू कंट्रोल द इंडियन ओशन रीजन। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये लड़ाई है, ये लड़ाई बेसिकली
इस चीज की है। एक तो आपने ये देखा कि पहला मिथ ये था कि अभी तक हमारा जो बॉर्डर डिमार्केशन है भारत और चीन के बीच में, ये क्लियर नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद न तो भारत सरकार ने न चीन सरकार ने कभी भी इस बात पर एग्रीमेंट हुआ कि ये भारत का बॉर्डर है, ये चीन का बॉर्डर है। कभी हम दोनों में इस बात को लेकर एग्रीमेंट नहीं हुआ। भारत का ये कहना है कि जो जॉनसन साहब, जो चार्ल्स मैकेटनी, जो एडगर, जो 1914 का जो शिमला कॉन्फ्रेंस था, उसको चीन माने। चीन कहता है कि मैं उसको मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं इट वाज एरा ऑफ ह्यूमिलिएशन, इट वाज इम्पोज्ड, एंड उस समय भी चीन के एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने कोई सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। देन लेट्स हैव ए फ्रेश नेगोशिएशन। तो फ्रेश नेगोशिएशन में ये आ रहा है, पैकेज डील करो, स्वैप डील करो, अरुणाचल तुम रखो, अक्साई चीन हमें दो। भारत कहता है नहीं, अक्साई चीन भी हमारा है और अरुणाचल भी हमारा है। फिर कहता है गिलगित बल्टिस्तान, जो पाकिस्तान जो 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का जगह है, कहता है वो भी पाकिस्तान कब्जा हमसे किया हुआ है, वो भी लद्दाख का भाग है, उसको भी हम कब्जा करेंगे। वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वुड गिव द एक्सेस टू आपको जो स्वेज कैनाल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक क्राइसिस है और ये क्राइसिस बना रहेगा। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। इवन जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की जो बात है, वहां पर भी 21 प्लेस पर भारत और चीन के बीच में क्लेम एंड काउंटर क्लेम है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं भाई ये हमारा है, ये हमारा है। नाउ आई विल मूव टू द रीजनलिस्ट। भाई द क्लेम, हु इज द लीडर ऑफ द चाइना, हु इज द लीडर ऑफ एशिया, एंड देन हु विल लीड द वर्ल्ड। अब आप देखिए, मैं थोड़ा एक आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूं। See, at present, China has a 70% global trade. China has a share of 17% global trade. India has a share of 2.6% of the global trade. यानी 100 रुपया में 17 रुपया चीन का है, 2 रुपया 60 पैसा भारत का है। ठीक है, अमेरिका का 24 पैसा है। अब देखिए कि पूरे वर्ल्ड में यदि 100 रुपीज कमाई हो रही है, यदि इफ द वेल्थ इज 100 रुपीज, देन ओनली द 5 richest country of the world has a share of 51 रुपीज। यानी 100 रुपया यदि पूरे वर्ल्ड का कैपिटल है, यदि पूंजी है, तो उसमें 193 जो रिकॉग्नाइज कंट्री है दुनिया का, उसमें मात्र 5 कंट्री, जिसमें 5 में भारत भी आ चुका है। नाउ इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है। तो इस 5 जो विश्व की 100 रुपये में 51 रुपया इनका है। और उसके बाद 6 से 10 के बीच जो राष्ट्र है, जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है, इनका शेयर है आपको 12.5 रुपया, 12.5 रुपये। और 10 to 20 के बीच जो राष्ट्र आते हैं, जो वर्ल्ड के 20 जो टॉप नेशन, इसमें साउथ कोरिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, ब्राजील भी आता है, साउथ अफ्रीका भी आता है, इनका शेयर है 13 रुपीज। यानी 100 में 13 रुपया ये कमाते हैं। यानी 10 से 20 जो पूंजीपति राष्ट्र हैं 10 to 20 के बीच में, ये आपको 13, उनका 13% शेयर है 100 रुपया में। जो 6 to 10 है उनका शेयर 12 to 12.5 रुपीज है। जो 1 to 5 है उसका शेयर है 100 में 51 रुपीज। और जो 1 to 2 है उसका शेयर है 40 रुपीज। आप देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। जो 1 to 2 है, जो मात्र 2 राष्ट्र है विश्व में, वो 100 में 40 रुपया उसकी पूंजी है। और जो 2 से 5 है उसका 10 रुपया पूरी पूंजी है। और जो 6 से 10 है उसकी पूरी पूंजी वर्ल्ड में 12 रुपया है। और जो 173 नेशंस है वर्ल्ड के, जो 173 नेशंस है वर्ल्ड के, उनका पूरे 100 रुपया में मात्र 21 रुपीज शेयर है। This is the distribution of the capital. This is the distribution of the economy of the world. Now, why not China can assert and why not America can assert? तो जिसके पास पैसा होगा वही assert करेगा. Those who have money who can assert it. Now, India has only 2.6% share of the global economy.
China has only India has only $3.2 trillion economy, and China has a 14.4 trillion economy. चीन के पास 15 ट्रिलियन डॉलर के पास आसपास संपत्ति है। चीन के पास सेविंग जो है 4 ट्रिलियन है, फॉरेन रिजर्व, सेविंग, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। और हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी 332 या 320 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसको कभी 294 ट्रिलियन डॉलर भी लोग कहते हैं। एक अलग अलग डाटा है, 294 टू 320 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। अमेरिका का जो एक व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम है, दैट इज $66,000, एंड हिंदुस्तान का कितना है $2,100, और चाइना कितना है $10,500। Now you are telling you are going to be a superpower. You are going to wreck on the you are going to wreck on the world. How you are going to wreck on the world? Your per capita income is just $2,100. China's per capita income is $10,500. America's per capita income is $65,000. अब आप देखिए, मिलिट्री में आप कहते हैं कि हमने चाइना को पीछे कर दिया, हम भारत जीत गई, भारत सुपर पावर हो जाएगा। अब इसका जरा आंकड़ा देखिए। सिप्री का आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ गिविंग द डिफेंस एनालिसिस एंड डिफेंस रिकॉर्ड टू द वर्ल्ड। अब देखिए, हिंदुस्तान का 2015 से लेकर 2020 के बीच में हिंदुस्तान ने कितना खर्च किया आम से नाश में। आपने कभी सुनते होंगे कि राफेल आ गया, कभी सोचते होंगे S-400 आ गया, कभी सोचते होंगे भाई हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक है, कभी आप सुनते होंगे तेजा आ गया। तो आपको लगता होगा कि भाई हिंदुस्तान तो मतलब चीन को कभी भी धो सकता है। अब जरा आपको मैं इन तीन देशों का कंपेयर करके दिखाता हूं, पाकिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान। अब देखिए, हिंदुस्तान जो है 2015 से लेकर 2020 तक 5 इयर्स में द मैक्सिमम मिलिट्री बजट ऑफ इंडिया और डिफेंस बजट ऑफ इंडिया इज $71 बिलियन। $71 बिलियन मैक्सिमम रहा है हिंदुस्तान का, और मिनिमम रहा है $41 बिलियन। 41 से लेकर $71 बिलियन के बीच में हिंदुस्तान का जो है मिलिट्री बजट रहा है, या 41 बिलियन या $51 बिलियन है। इसको थोड़ा आंकड़ा माइंड स्लिप हो रहा, 2015 में हो सकता है $51 बिलियन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चाइना? चाइना हैज spent $241 बिलियन to $263 बिलियन। अब आप समझिए कि कोई 50 रुपया खर्च कर रहा है और कोई 250 रुपया खर्च कर रहा है। जो 250 रुपया खर्च कर रहा है उसके पास ज्यादा सामान होगा, या जो 50 रुपया खर्च कर रहा है उसके पास ज्यादा सामान होगा? हम खर्च कर रहे हैं 50 से 70 रुपया। चीन खर्च कर रहा है 240 से लेकर 260 रुपया। Who will have a more arms? Who will have a more arsenals? In a year, if we purchase within the 5 years, then we will reach a year's goal of the China. 5 साल में जब हम जितना खर्च करेंगे डिफेंस बजट पर, तब हम चाइना के आसपास पहुंचेंगे। और आप कह रहे हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे, चाइना को हम हरा देंगे, चाइना को हम साफ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के पास इतना पावर है। प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल काम है, वो कब पलटी मार दे कोई ठीक नहीं। अमेरिका इज ए बिजनेसमैन। 2005 में कहा कि we wish to see India as a global player। कॉन्डीला राइस ने 2005 में कहा we wish to see India as a global player। 2008 में we signed a civil nuclear deal। 2002 में America lifted all the sanction from the India, and India was so confident, now they can tackle and India would emerge as a superpower in the world। हुआ क्या?
2009 में ओबामा साहब चीन गए, एंड व्हाट ही सेड, he said China role is very influential in the South Asia because China can resolve the conflict and the issues and the challenges of the South Asia. जो बराक ओबामा था, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो क्या कहता है 2009 में कि चीन जो है दक्षिण एशिया में जो समस्याएं हैं, जो कल संघर्ष है, जो चुनौतियां हैं, उसको कम करने में चीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इधर हम सोच रहे थे कि ना तो चाइना वुड, अमेरिका वुड प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट अगेंस्ट द चाइना। तो the principal was quite right when he stated that we can't trust the America. अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अभी वो H1B वीसा बंद कर दिया। अमेरिका हैज ओन स्ट्रगल। 1817 from 1817 to till 1920 till today, America is number one economic giant of the world. 1870 से लेकर 1920 तक आज तक अमेरिका को विश्व में सबसे संपत्तिशाली, सबसे प्रभावशाली देश रहा है और किसी ने रिप्लेस नहीं किया। Now America has a threat because all the institution and predictions from the America, whether it's America intelligence report, America Council report, Goldman Sachs, PSW report, RAND, all predicted that the China would replace the America in 2030. 2030 में चीन जो है अमेरिका को रिप्लेस कर देगा। एंड आज जो अंतर है $7 ट्रिलियन की, वो 2024 में घट के $4.5 ट्रिलियन की रह जाएगी। और इवन नॉमिनल टर्म्स में जो चीन जो है 2030 में वर्ल्ड का सुपर जाइंट हो जाएगा। एंड दैट इज द बेसिक थ्रेट ऑफ द अमेरिका। अब आप देखिए अमेरिका क्यों घबरा रहा है। अभी भी जो जितनी प्रोजेक्शन है उसमें चीन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6% है, हिंदुस्तान का 5.8% है, और अमेरिका का 2% है, और जापान का 7% है। अब बताइए कोई 70 गज दौड़ता है, कोई 100 गज दौड़ रहा है, कोई 200 गज दौड़ रहा है, कोई 600 गज दौड़ रहा है। Who will win the race? Definitely those who will pass the 600 gaj distance. Now the China is running rapidly, running at the rate of 6%. India is running at the rate of 5.8%. America is running at the rate of 2%. Japan is running at the rate of 7%. Germany is running at the rate of 1.5%. UK is running at the rate of 1.8%. So this is the threat across the world. China has emerged as one of the threat, and who can counter this threat? कौन counter कर सकता है? Now who is running closely? Who is the second one? The India. Now see what is the potentiality of India. India has now become 5th largest economy of the world. So India economy is $3.2 trillion. हिंदुस्तान का इकोनॉमी $3200 के आसपास है, $3200 बिलियन है, ठीक है। चीन का है आपको $15,000 के आसपास, मतलब $15 ट्रिलियन के आसपास है। अब आप देखिए कि जर्मनी को हिंदुस्तान जो है दे आर गोइंग टू बाईपास द जर्मनी इन 2024। हिंदुस्तान का एक प्रेडिक्शन है कि जर्मनी को हटा के भारत जो है 2024 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर हो जाएगा नॉमिनल टर्म्स, जीडीपी नॉमिनल टर्म्स। और अभी हिंदुस्तान जो है परचेजिंग पावर पैरिटी और हमारी खरीदारी की क्षमता है, उसके हिसाब से हम जो है 2018 में $10,000 ट्रिलियन के मालिक थे, बाद में अभी 2019 में $11,000 ट्रिलियन के मालिक हो गए, और 2020 में हमारी मान्यता है कि हम 12,000 ट्रिलियन के मालिक होंगे, ठीक है।
अमेरिका जो है 21 या 20 to 21,000 ट्रिलियन डॉलर का मालिक, और चीन जो है 27 ट्रिलियन डॉलर का मालिक। यानी कि हिंदुस्तान जो है 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिका 20 to 22 ट्रिलियन डॉलर एंड चाइना 27 to 29 ट्रिलियन डॉलर। हिंदुस्तान जीडीपी नंबर टर्म्स में 3.2 ट्रिलियन डॉलर, चाइना आपको 14 to 15 ट्रिलियन डॉलर एंड अमेरिका 21 to 23 ट्रिलियन डॉलर। यही आंकड़ा आप जितने आंकड़ा देखेंगे, वर्ल्ड बैंक देखें, आईएमएफ देखें, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखें, या जिसकी भी रिपोर्ट देखें, ब्रांड का देखें, गोल्डमैन सैच का देखें, पीडब्ल्यूई का देखें, यही आंकड़ा पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। यही दोनों के बीच में आंकड़े। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान जो है क्या चीन को काउंटर कर सकता है? क्या हिंदुस्तान में पोटेंशियलिटी है? अब जरा थोड़ा हिंदुस्तान और चीन का कंपेयर कीजिए। 1980 में, 1980 में 313 बिलियन डॉलर का मालिक था आपको चीन। 313 बिलियन डॉलर का मालिक था चीन, यानी वर्ल्ड में 7वां लार्जेस्ट इकोनॉमी था। भारत 13वां लार्जेस्ट इकोनॉमी था, यानी कि भारत के पास 179 बिलियन डॉलर। अंतर कितनी थी? ऑलमोस्ट 150 डॉलर के आसपास का अंतर था, डॉलर की कम 6 का गैप था। 6 1990 में नॉमिनल टर्म्स में इंडिया और चाइना बराबर थे। परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी के दौर में भी इंडिया और चाइना बराबर थे। 1990 के बाद जो है 2020 तक कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ने 15 साल राज किया है इस देश। बोथ द पार्टीज हैव रूल्ड दिस कंट्री विद ऑल द अलायंसेस 15 and 15 years। कोई पार्टी किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकता। बोथ द पार्टी हैज रूल्ड 15 years। Now the China's growth story has been emerged and India's growth story has been emerged. India also liberalized its economy. China already liberalized in 1978. चाइना का ग्रोथ स्टोरी 9.9% का रहा 1980 से लेकर 2010 तक। हिंदुस्तान का ग्रोथ स्टोरी 1990 से लेकर 2010 तक जो रहा 7 to 8% का रहा। 7 to 8% का रहा। 1998 में चाइना जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, और जस्ट आफ्टर 9 years 2007 में हिंदुस्तान जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। 2007 में 2005 में आफ्टर 7 years, जस्ट आफ्टर 7 years, चाइना बिकेम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2007 में हिंदुस्तान भी हुआ था 1 ट्रिलियन। एग्जैक्टली 2014 में when मनमोहन सिंह relinquished the post of the प्राइम मिनिस्टर सीट, हिंदुस्तान भी 2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो गया। 2007 में आफ्टर 2 years चाइना बिकेम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड हिंदुस्तान, यहीं पर हिंदुस्तान का जो है ग्रोथ रेट घट गया। 6 साल हो गए हिंदुस्तान को, जहां चाइना ने 2 साल में ग्रोथ स्टोरी पाया था 3 ट्रिलियन डॉलर का, हिंदुस्तान को 6 years लगे आपको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का। फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड कंपीटिंग विद द चाइना। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक सर्विस सेक्टर्स होता है, और एक आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। चाइना इमर्ज एज ए हब ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण के क्षेत्र में चीन जो है पूरे दुनिया का बादशाह हो गया। एंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना's कंट्रीब्यूशन इज 8% ऑफ द टोटल जीडीपी। इंडिया 15 to 70%। हिंदुस्तान का 15 से 17 रुपया जो आता है एग्रीकल्चर से आता है, 23 रुपया मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और 61 रुपीज जो है हिंदुस्तान का सर्विस सेक्टर से आता है।
चीन का जो है यही आपको आता है 8% एग्रीकल्चर से 40% मैन्युफैक्चरिंग। Therefore, you have been listening nowadays. The Prime Minister is talking about Atmanirbhar Bharat and Make in India and the urban infrastructure and infrastructure. Where, as long as we cannot improve ourselves in this area, we are not going to compete with the China. We haven't resources, we have a money. Now Germany is ready to help us. Japan is ready to help us. America is ready to help us. Russia is ready to help us. And we have resources. We have a population. We have a skilled manpower. We produce 3.5 lakh engineers each year. China produce 7.5 lakh engineers each year. But our employability of engineers are far better in the global level than the China. चाइना 7 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, हम 3.5 लाख प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बेटर है चाइना से. वी आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. चाइना हैज टू लर्न द इंग्लिश. रशिया, despite having a closer relation with the China, never considered China as a friend state. But Russia also considered India as a natural ally or a friend state. तो चीन के पास ना तो जर्मनी जैसा दोस्त है, ना तो जापान जैसा दोस्त है, ना तो अमेरिका जैसा दोस्त है, ना तो रसिया जैसा दोस्त है, लेकिन भारत के पास ये तमाम लोग हैं जो आज इंडिया को सपोर्ट करने, इनकी मजबूरी है. दे हैव ए कंपल्सन बिकॉज दे हैव टू काउंटर द थ्रेट ऑफ द चाइना. एंड हियर इंडिया हैज एडवांटेज. हियर इंडिया हैज एडवांटेज. Therefore, India trying to showcase itself, India has all potentiality to become a global player. Therefore, if India would encourage its manufacturing sectors, because the hub of this encouragement is based on the skill, and who will produce the skill? The educational institution. And this is the apathy of the Indian government that